بجٹ وری 2024-25 مز جموں کشیر دن آمت واریاہ کی پولیس بجٹ الگ کرت تعمیر ترقی ہز وت جموں کشیر مز مزید ہموار نرملا سیتا رمن جموں کشمیر اپنی پارٹی طرف سری نگرس مز احتجاج مرکزی سرکار خلاف نعرہ بازی ریاستی درجہ بحال کرنچ مظاہرینو مانگ کانگریس پارٹی طرف پلوامس مز کنونشن ساز مرکزی قیادت علاوہ جموں کشیر ہندو لیڈرو تو ورکرو شرکت تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل پارلیمنٹس مز یہ مرکزی سرکار طرف بجٹ 2024-25 پیش کرنے پتہ پتمو کیچو دو پہ لوک سبھا مز بجٹس حوالہ بحث سپدن تو ممبر پارلیمنٹ سری نگر آگاہ روح اللہ تو ممبر پارلیمنٹ راجوری اننت ناگ میاں محمد الطافن جموں کشیر ہندس بجٹس حوالہ ایوانس وون زِ ات بجٹس مز کی خاص نظر گژھان تتہ آج مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمنن ممبرو طرف وتلانہ آمتن معاملن حوالہ ایوانس ونمت جموں کشیر ہندس بجٹس مز پریت ورگو خیال تھونہ آمت یت زن جموں کشیر ہز تعمیر ترقی ست ست عام لوکن نوجوانن زنن تو باقی طبقن راحت واتہ. Sir, I had also presented the Jammu Kashmir budget for 24-25. I'm happy to inform that the concrete steps that have been taken to enable the Union Territory to break free from the fetters of the past, namely the legacy of fiscal distress which has been inherited from the erstwhile state. We have provided substantial financial support, and I'll give the numbers, 17,000 crores in the union budget of the UT of J&K this year. It includes 12,000 crore towards financing the cost of Jammu Kashmir Police. That's a burden we want to take on our shoulders so that J&K has more flexibility to spend money for developmental activities. And the additional central assistance of 5,000 crore has been provided. With this support, I expect the GSDP ratio, fiscal deficit to GSDP ratio of the Union Territory would be somewhere, and I'm estimating it, somewhere in the range of 3% for the year 24-25. The public finances of the Union Territory are now back on the rails, and they are now able to focus on developmental activities much more than ever before. And the fiscal prudence is the biggest spirit with which the welfare activities are being taken up without any compromise on Sabka Saath, Sabka Vikas. So, because Jammu and Kashmir budget was particularly of interest to some of the members, I would like to respond to the members as well, much before I go to responding to members on the general budget. Sir, some members of J&K have raised questions about unemployment rate in J&K. Mia Altaf MP and also Honorable Member Aga Syed Ruhullah Mehdi, they have raised issues about unemployment, and I would want to put it on the record of this House. Unemployment rate, that is for the age group of 15 to 59 years, has actually come down for J&K from 6.4% in 2020-2021 to 5.7% in 21-22 to 4.4% in 22-23, sir. So there is a reduction in the unemployment rate in J&K. The reduction is primarily because there is a lot of avenues being created for self-employment, and livelihood opportunities through Government of India schemes are reaching all people in J&K, and as a result, you can see that employment opportunities in the sense of self-employment has actually grown. So again, Honorable Member Mia Altaf had raised this issue about the works that were undertaken by the Union Territory government for the welfare of tribals. I'll certainly like to say, sir, there are about 9 important things which need to be highlighted.
The Union Territory government has undertaken several initiatives for tribal welfare in the areas of healthcare, education, culture, infrastructure development, and livelihood. After 2 decades, actually, forest rights were granted to tribal communities. 2 शतक के बाद, इंतजार के बाद, ट्राइबल कम्युनिटीज का उनका हक फॉरेस्ट राइट्स के द्वारा दिया गया है। 5,943 forest right certificates have been issued to the tribal people. First ever survey of the nomadic tribal population has also been conducted. Transport facilities are being provided to the nomadic tribes and the Bakarwals because they move up the range during summer and come down from the higher reaches to the lower levels. Transport facility is also being provided. Transit accommodation is provided to migratory tribal communities. Again, the communities which move from colder to slightly warmer regions in winter, including community kitchens, medical and veterinary dispensaries, and community toilets. All these have been provided for the migratory tribal communities. Professional coaching centers, scholarships, skilling for 48,000 tribal youth, 8 new hostel buildings, 285 smart schools, 6 Ekalavya residential schools have all been developed in the Union Territory of Kashmir. 80 schools to be transformed into smart schools in the tribal areas. That's a very important step forward, and it will benefit tribal children. 186 tribal villages are being developed under the PM Adi Adarsh Yojana, so helping tribal communities. Tribal Research Institute is being developed in Srinagar, and these are some of the very specific measures being taken by the government, and I hope the Honourable MP has got substantial information on the question that he asked. यपर जम्मू हंदिस बजटस हवाले बहस अंद वातन पत लोकसभा में स्पीकर सद तरफ अमे हवाले जबानी वोटिंग करने आमत यथ दौरान अक्सर मेंबरों तरफ बजट किस हकस मज आकार करने आव यम पत यह सदर हंदस सोजन यी। माननीय सदस्य अपने वर्ष 24-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये है कि अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 36 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हवालों का हुआ। निर्णय हवालों का वर्ष 24-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर संबंधी मांगों के पारित हुई। आइटम नंबर 30 माननीय वित्त मंत्री पुलवामिस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज भारत सिंह सोलंकी, वकार सोलवानी तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन मौजूदा सूरत हाल तो इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तथ वर्करन पर जोर दिन आमुत तम गन पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस हवाले चुकसान कम करें युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी से वाबस्त सपदन। यल जन पार्टी लीडरों तरफ मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामी नुक्त चीनी करान वन आव यदवे जम्मू कश्मीर मज अमन अमान तो तमीर तरक्की हंद बड़ दाव कर ताहम जमीनी सूरत हाल यह लूक रंग रंग मुश्किल मज हन आमद। प्रधानमंत्री वजीर आजम बातें करने में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखते हैं कि जो वादे वो जम्मू कश्मीर में आके करके गए, बताइए कौन सा वादा निभाया।
स्टेटहुड देने की बात करके गए थे, ऊपर से एलजी के पावर्स बढ़ा के। आप जानते हैं कि दिल्ली का जो दर्जा है और पौंडीचेरी से भी बदतर दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया है। एक म्यूनिसिपालिटी चलाने की बात हो, ऐसी हमारे असेंबली के चुने हुए नुमाइंदे अगर सरकार बनेगी तो उसको रोक टोक करके पूरा एलजी का गवर्नेंस होगा। इसके लिए उन्होंने काम किया है। पूरी बातें आपको तफसील से बताई। हमारा जो दौरा है ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम आज घूम रहे हैं। लोगों को ये चीज़ पता चल चुका है कि हमारा फ्यूचर अगर किसी पार्टी में सिक्योर है वो कांग्रेस में है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया। इनको 47 से लेके आज तक पहली बार हुकूमत मिली थी और इन्होंने उसी हुकूमत के जरिए जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। अगर यहाँ स्टेटहुड कोई दे सकता है, कांग्रेस दे सकती है। अगर यहाँ की जमीन और नौकरियों को कोई सुरक्षित कर सकता है, कांग्रेस कर सकती है। अगर यहाँ कोई रोजगार दे सकता है, गरीबी दूर कर सकता है, यहाँ के बिजली के मसले हल कर सकता है, यहाँ के राशन के मसले हल कर सकता है, यहाँ का केसीसी लोन माफ कर सकता है, वो सारा कुछ कांग्रेस कर सकती है। और यहाँ की खुशहाली जो है कांग्रेस ही ला सकती है। ये कश्मीरी आवाम को अब पता चल चुका है कि अगर हमें कोई खुशहाल कर सकता है, खुशहाली दे सकता है, वो कांग्रेस पार्टी दे। कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल पार्टी लीडर तो वर्कर मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल पार्टी लीडरों तरफ ये जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल करने मांग कर आम। तत असेंबली इंतखाब अमल मज अनस हवाले ते मरकजी सरकार मांग करना आम। यह पार्टी लीडरों तरफ वन आव जम्मू कश्मीर हिंद लूक जमहूरी हकूकन निश दूर थावने यम किन जम्मू कश्मीर मज रोजन वाल लूक रंग रंग मुश्किलन मज हेन आमत। अत मौके पे ये पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ लाल चौक कुन मार्च करने कोशिश करना आई, ताहम पुलिस तरफ यह कोशिश नाकाम बनाने आमत। पिछले 4 बरसों से ये मुतालबा दोहराती आ रही है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का जो स्टेटस है उसे बहाल किया जाए। अगरचे कई बार मुल्क के ऑनरेबल वजीर आज़म और ऑनरेबल वजीर दाखिला की तरफ से यकीन दहानियाँ भी आई और उन्होंने ऐलानात भी किए कि स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा, लेकिन अब तक 5 बरस होने को आए वो स्टेटहुड बहाल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जिसको ज़्यादा ही अब तूल दिया जा रहा है। और इस तवील होने की वजह से जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने 1 महीने कबल भी एक डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का इनेकाद किया था। उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के कायदीन ने एक मीटिंग अपने कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब की सरबराही में मुनक्कद की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि आज 30 जुलाई को हम पार्टी ऑफिस से लेकर प्रेस कॉलोनी तक एक पुरअमन मुजाहिरा करेंगे, जिसमें मुल्क के वजीर आज़म साहब, मुल्क के वजीर दाखिला साहब और पूरी हुकूमत को यह याद दिलाया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ आप जमहूरी ज़्यादतियाँ जो कर रहे हैं उस सिलसिले को आप बंद कर दीजिए। आप अपने उस वादे को अपनाइए और अमलाइए जिसके मुताबिक आपने ये बता दिया कि हम दिल्ली और दिल्लों की दूरियों को जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ दूर करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। उसी याद दहानी, उसी ऐलान को अमलाने के लिए आज एक बार फिर जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी पुरअमन तौर अपने सीनियर कायद और पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब गुलाम हसन मीर साहब की क़यादत में एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा प्रेस कॉलोनी तक मुनक्कद कर रही है। और मुतालबा हमारा यही है कि यहाँ जमहूरी इदारों को बहाल कर दो, यहाँ स्टेटहुड हमें वापस दे दो, और जो अमेंडमेंट्स हालिया रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बिजनेस रूल्स में आपने की है उनको विड्रा कर दो। आज जम्मू एंड कश्मीर अपनी दौद पथर बडगमस में आज पीडीएफ तरफ कन्वेंशन सज कर आमुत, यथ पार्टी सरबराह हकीम अहमद यासीन तो दोम लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो इन वाले असेंबली इंतखाबन हवाले कथन दाल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत ज तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम कर, युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन।
देख लिया कि लोगों के मसाइल कितने हैं, मुश्किलात क्या है, तो इनका सद्जवाब एक ही यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी से कोई मामला आज तक ना हल हुआ, ना हल होने वाला है। आप देखिए जमीनी हकाइक कुछ और है, ज़बानी हकाइक कुछ और है, जो आप खुद बज़ाहिर खुद भी मुशाहिदा कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑनर ही करना ही है, दूसरी तरफ जो बज़ाहिर खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, तो जितना जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन का ऐलान करे, ताकि एक मुंतखब सरकार चुन के आएगी जो लोगों के मसाइल और मामलात है उनकी उन तरफ तवज्जो दे। देखिए, हमें भी दावत मिली थी, मगर मुझे PhD में दावत मिली थी, मैं उस वक्त भी नहीं गया। ये सही बात है कि हमें जम्मू कश्मीर के मामले के हवाले से मुत्तहिद होना चाहिए, मगर अगर आज का जो ये मीटिंग PhD जलसी हो, फिर इस मीटिंग का बुलाना या इसका इनेकाद करना कोई फायदा नहीं। आप जाएंगे शिरकत के लिए? देखिए, मैं वो वक्त फैसला करेगा, अभी हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमें तय करना है कि एजेंडा क्या। कपवारिस में आज तकरीबन सांझ करना आमुत यथ जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार सलाह पुलिस जिम्मेदारों महकमे जंगलात के अहदेदारों सिविल सोसाइटी हिंदो मेम्बरों तो अवामी नुमाइंदों शिरकत कर। अत मौके पे एडिशनल ब्लॉकस कन लागना आई तथ रीडिंग ब्लॉकस इफ्तिताह करना आमुत, ये जन अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आव जे लाइब्रेरी हुंद बुनियादी ढांचे मजबूत करने सहित जिले के तलब इलमन ब्रोह पकनस मज मजीद फायदे तो आसानी वातित। मैं समझती हूँ कि बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा का, डिप्टी कमिश्नर का, क्योंकि इस तरह का जो लाइब्रेरीज़ एक किस्म का माहौल फराहम करती हैं बच्चों को, जो एक उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड पैदा करता है। व्हेन यू सी बुक्स अराउंड यू, व्हेन यू सी अदर एस्पिरेंट्स स्टडिंग विद यू, तो आपकी ग्रुप स्टडीज़ भी स्टार्ट हो जाती हैं, आप एक दूसरे को मटेरियल बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मेरा मैसेज यूथ के लिए यही रहेगा कि ये आपकी ज़िंदगी के बहुत अहम तरीन साल होते हैं जो यूथ होता है, और ये किस तरह से आता है किस तरह से जाता है आपको नहीं पता चलता, तो इसको प्रोडक्टिव चीज़ों में इस्तेमाल करें। एंड स्टडिंग फॉर सम पर्टिकुलर एग्जाम इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन टू इट। तो नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज, अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, बी वेरी फोकस्ड, बी वेरी डेडिकेटेड। एंड हमारे यहाँ के बच्चे, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं कंपैरेटिवली टू रेस्ट ऑफ द प्लेसेस, बस उनके अंदर इनहिबिशंस होती हैं कि शायद हमारा हो नहीं पाएगा। सो आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी कि अगर हम जैसे कर सकते हैं आपके बीच से निकल कर, तो आप भी कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ। हमारे लिए एक बहुत, जो बच्चे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में एक पहला ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी को तामीर दिया गया है, और वरना बच्चों को यहाँ से श्रीनगर या बाकी जगहों पे जाना पड़ता था, क्योंकि अब लाइब्रेरी का कल्चर बहुत ज़्यादा आम हो गया है, क्योंकि बच्चे एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहते हैं जहाँ पे उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये देख के कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रही है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के लिए, ताकि बच्चों को जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे वो अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। और आयुषी मैम ने ये भी यकीन दिलाया कि वो हर हफ्ते में एक बच्चों के लिए ऐसा सेशन रखा करेंगे जो भी UPSC एस्पायरेंट्स है उनके लिए, ताकि बच्चों को एक गाइडेंस मिल सके कि वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे जारी रख सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको एग्जाम्स में करनी है या नहीं करनी है। इस चीज़ के बारे में वो हर हफ्ते में हमारे बच्चों, मतलब जो भी एस्पायरेंट्स होंगे उनके साथ सेशन लिया करेंगी। डायरेक्टर लाइब्रेरीज़ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और कुछ हमारे पास डोनर्स थे हु केम फॉरवर्ड एंड डोनेटेड बुक्स, डोनेटेड लैपटॉप्स, एंड नाउ इट इज़ इन गुड शेप। एंड आई होप कि जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, UPSC एस्पिरेंट्स, JEE एस्पिरेंट्स या नीट एस्पिरेंट्स, इसको फुली यूटिलाइज़ करें और ये एक अच्छी स्पेस बने फॉर को शेयरिंग, को लर्निंग। यहाँ पे लोग सीखें, बातचीत करें, मोटिवेट हो टू क्लियर द डिफरेंट एग्ज़ाम्स। जैसे कि कल हमने एक फ़िज़िक्स वाला के साथ कुछ एक कोलैबोरेशन में वी हैव केप्ट एन इवेंट फॉर JEE एंड नीट। सो दीज स्मॉल इवेंट्स वील कीप ऑन हैविंग सो दैट हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो मोटिवेटेड रहें। देखिए, पढ़ाई तो खुद ही करनी है, बट येस वील हैव दीज मोटिवेशन थ्रू दीज डिफरेंट सेशंस, एज वेल एज कि कहीं कहीं मेंटरिंग सेशंस हम करवाएंगे। वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अ करियर काउंसलिंग यूनिट ओवर हियर, जहाँ पर सॉफ्ट स्किल एसेट्रा, वहाँ पर एक बेसिक जो काउंसलिंग है। तो नाजरीन, खबरनामा नए सब्द तो बे मुलाकात, फिलहाल दी इजाज़त, खुदा सवाल।